Good morning, class 7. Class 7, yesterday we have completed question 3 that was related to your first law. In this question, we have to use first law. In this also, we have to use first law. And in this, by the use of second law, we have simplified this. Okay. And now come towards your question number 4. Question number 4 is also based on your question number 3. That means based on laws of exponent. So in this is 5 by 7 whole power 4 divided by 5 by 7 whole power 2. Now division is there, same base, but power is different. So we can use second law, as you know. So by the use of second law, what we will get over here, this is 5 by 7 whole power 4 minus 2 according to second law, and then we will get 2. Okay, and then because answer you want in rational number, then we have to open this, that 5 square is 25 and 7 square is 49. Okay, and similarly it's your second part, fourth part, fifth part, third part based on your law 1 and law 2. Now come on your question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज यू वांट टू इवेल्युएट. अब आपको इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने में आपको ना तो पावर में आंसर लिखना है ना रैशनल नंबर में, आपको प्रॉपर सिंप्लीफाई करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल this is 3 by 4 whole power 3 multiplied by 2 by 3 whole square. सो नाउ व्हेन वी विल चेक द बेस, क्योंकि बेटा जब भी हमें लॉज लगाने हैं वी हैव टू चेक कि बेस सेम होना चाहिए या पावर सेम होनी चाहिए. बट इन दिस क्वेश्चन बेटे ना तो पावर सेम है, देखो पावर एक 3 है और एक 2 है, और ना ही बेस सेम है. तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन लाइक दिस. नाउ वी कैन ऑब्जर्व दैट इन क्वेश्चन नंबर 5 वी कैन यूज फिफ्थ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. How? See this. This is 3 by 4, यानी एक बेस 3 है, एक बेस 4 है और पावर है 3. तो वी कैन यूज लॉ 5 x बाय 5 x बाय y होल पावर m इज इक्वल टू x रेज टू द पावर m डिवाइडेड बाय y रेज टू द पावर m. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस व्हेन वी विल अप्लाई दिस लॉ, तो ये पावर 3 बेटा 3 के ऊपर भी आएगी और 4 के ऊपर भी आएगी. तो वी विल गेट 3 क्यूब अपॉन 4 क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर. तो फर्दर we can open this. 3 raised to the power 3 we can write 3 time, 2 raised to the power 2 we can write 2 time, and similarly, and if cutting is possible we can do the cutting, and then rest of the numerator multiply with each other and rest of the denominator also multiplied with each other. So the answer is 3 by 16. Okay, now the second part of the same question is, second part is given, fifth question. Second part, 1 by 3 whole power 6 divided by 1 by 3 whole power 5, and then this is whole divided by 1 by 3. तो बेटा remember board mass. According to board mass we have to open the bracket first. तो इसका मतलब सिर्फ हमें bracket के अंदर अभी focus करना है. So we can use second law of exponent x raised to power m divided by x raised to the power n is equal to x raised to the power m minus n. So based on that we are getting 1 by 3 whole power 6 minus 5 divided by 1 by 3. ये बेटे outside 1 by 3 it will remain same. तो when we will simplify we are getting 1 by 3 होल पावर 1. तो 1 को बेटे आप लिखो या ना लिखो, डिवाइडेड बाय 1 बाय 3, डेट मीन्स सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर इज 1. ओके, सो नाउ
This is your fourth part. 4 square minus 3 square divided by 1 by 7 whole square. Now inside this bracket we cannot implement any law of exponent because there is a minus sign. Subtraction में बेटे laws नहीं लगते. Laws हमारे कब लगते हैं? जब हमारे पास multiply हो या divide हो. So we know the square of 4. 4 का square बेटे 4 multiplied by 4, this is 16. 3 का स्क्वायर मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय 3. बेटे स्क्वायर का मतलब है कि आपने उसी डिजिट से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है. ठीक है. सो 16 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर मीन्स 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो वी विल गेट 1 इंटू 1, और 7 को किया तो 7 स्क्वायर इज 7 इंटू 7, दिस इज 49. तो अगेन अकॉर्डिंग टू बॉड मास वी विल सब्ट्रैक्ट 7 डिवाइडेड बाय 1 बाय 49. अब बेटे जब भी डिवीज़न होगी तो आपने किया है ना रैशनल नंबर में, वी विल कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लिकेशन और 1 बाय 49 का रेसिप्रोकल आ जाएगा 49 एंड वी विल मल्टीप्लाई विद ईच अदर, वी विल गेट द आंसर. सो question 5 first, second and fourth part I have explained to you. Third part you have to do yourself. Now we are coming towards worksheet 4. So worksheet 4 you have to do properly in your notebook. प्रॉपर बेटे आप लॉ लिखेंगे एंड बेस्ड ऑन लॉज यू हैव टू डू दिस वर्कशीट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, फिल अप 16 whole power 15 divided by 16 whole power 19. सेम बेस, डिवीज़न इज देयर, पावर अलग अलग है, तो अकॉर्डिंग टू डैट व्हाट वी विल गेट 15 माइनस 19. बेटे जो पहला नंबर है उसी में से ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो वी विल गेट -4. बट एज यू नो कि वी आर हैविंग दिस लॉ ऑल्सो कि जब भी हमारे पास नेगेटिव पावर होगी उसको हमने पॉजिटिव में कैसे बदलना है, take the reciprocal, or reciprocal concept yesterday we have discussed. So we are getting 1 by 16 whole power plus 4. Okay, and similarly second part 11 by 12. बेटे यहाँ पे आपके पास फिलअप है डिवाइडेड बाय 11 बाय 12 होल पावर 22, और यहाँ देखो बेटे 1 बाय आ रहा है हमारे पास 11 बाय 12 होल स्क्वायर. तो ये भी 1 बाय था ना, इसका मतलब जो पहली पावर है वो स्मॉल है तभी हमारे पास डिनोमिनेटर में आया. तो 2 कैसे आएगा, 20 माइनस 2, तो वी विल गेट 20 ओवर हेयर. ओके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज simplify and express in exponential form. This is 9 by 2 whole power 0 and one more whole power is there, that is 5. ओके. सो यू नो दिस लॉ कि अगर एक बेस है उसकी पावर और एक और पावर अगर हमारे पास है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी. सो 9 by 2 होल पावर 0 मल्टीप्लाइड बाय 5, एंड यू नो 0 5 ज़ा 0 को बेटा किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0. एंड वी नो दिस लॉ ऑल्सो कि कोई भी बेस हो पावर में 0 है तो पूरा नंबर कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल नंबर 1 में. ओके. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फोर्थ पार्ट, दिस इज -2 by 5 होल पावर 3 मल्टीप्लाई -2 by 5 होल स्क्वायर एंड वन मोर होल पावर इज गिवन 4. तो बेटे इस पावर को तो हम बाद में फोकस करेंगे, हमारा क्वेश्चन है सेम बेस मल्टीप्लाई एंड पावर इज डिफरेंट, तो वी विल यूज फर्स्ट लॉ ओवर हेयर. तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ -2 by 5 होल पावर दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, वी विल गेट 3 plus 2, बट दिस होल पावर 4 विल रिमेन एज इट इज, राइट. सो दिस इज -2 by 5, दिस इज -2 by 5 होल पावर 5, one more whole power is given 4. Now we can use this law again. बेटे जहाँ जहाँ जो आप लॉ लिख रहे हैं ब्रैकेट में आप लिखते रहें ताकि आपको लॉज भी साथ साथ लर्न होते रहें. सो दिस इज -2 by 5 होल पावर 5 4 ज़ा, डेट इज 20. क्लियर. सो नाउ इन क्वेश्चन नंबर 3 वी वांट टू इवैल्यूएट. अब बेटा हमें इवैल्यूएट का मतलब होता है कि फाइंड आउट करो, आंसर निकालो.
Question number 3, first part, this is minus 3 by 4 whole power 3 divided by minus 3 by 4 whole power 5. तो यहाँ देखो बेटे बेस सेम है, पावर अलग अलग और डिवाइड हो रहा है, तो हमें क्या करना है, वी कैन यूज सेकेंड लॉ एंड बेस्ड ऑन सेकेंड लॉ एक्स रेज टू द पावर m माइनस n. सो दिस इज 3 माइनस 5, नेगेटिव पावर वी विल गेट, और जब भी नेगेटिव पावर हो तो बेस का रेसिप्रोकल लो वो आपकी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी. सो सिमिलरली 1 बाय 5 स्क्वायर होल पावर 2 इंटू 1 बाय 5, तो वी विल यूज़ द लॉ ऑफ 1 बाय 5 2, और एक और 2 है बेटे, तो 5 रेज टू द पावर 2 इंटू 2, और ये 1 बाय 5 एज इट इज़. जब तक आपकी ब्रैकेट सिंप्लीफाई नहीं होगी आप इस 1 बाय 5 को यूज़ नहीं करेंगे. सो 5 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 1. सो दिस इज 4 और 1 है ना बेटे, और डिनोमिनेटर में है सेम बेस, तो क्या आ जाएगा 1 बाय 5 रेज टू द पावर 5, और आंसर में उसने इवेल्यूएट कहा है तो आप 5 को 5 रेज टू द पावर 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करके भी आंसर निकाल सकते हो. ठीक है बेटा जी. नाउ कम ऑन योर थर्ड पार्ट. This is minus 5 by 6 whole power 2 divided by minus 5 by 6 square whole square. तो again we will hide this. बेटे इसको हम बाद में यूज़ करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी स्मॉल ब्रैकेट है और फिर बिग ब्रैकेट है, और यहीं पे हमारे पास 2 पावर्स हैं, तो we will use the law x रेज टू द पावर m रेज टू द पावर n. तो अकॉर्डिंग टू डैट दोनों पावर मल्टीप्लाई हो गई, हमारे पास क्या आ गया 4. नाउ वी कैन यूज दिस डिवाइडेड बाय माइनस 5 बाय 6 स्क्वायर, सेम बेस पावर डिफरेंट, तो वी विल यूज माइनस 5 बाय 6. और बेटा जी एक चीज़ ध्यान रखना आप कि जब भी आपके पास नेगेटिव पावर हो, नेगेटिव बेस हो और पावर इवन हो तो माइनस साइन ख़त्म हो जाता है. आप लॉज में एक चीज़ ये लिख लें बेटे कि -1 की पावर अगर इवन है तो वो +1 में कन्वर्ट होगा, और -1 की पावर अगर ऑड है तो वो -1 में रहेगा. ये बेटे लॉज के बाद आपने लिखना है, एंड वी विल यूज़ दैट एंड देन वी आर गेटिंग दिस, एंड द सेम इज़ योर फोर्थ पार्ट. तो यू कैन ट्राई question number 3 also, all the parts. Thank you.